as per the last class is concerned and previous classes is concerned, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अप्रोप्रिएशन हम लोगों ने दिखा है. बेसिकली दे आर सिंपल इन नेचर. हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट था. इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कैपिटल कैलकुलेशन, इफेक्टिव कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब के ऊपर चर्चा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर, कमीशन, बोनस, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ये सब के ऊपर बात हुआ है. आज मैं पहले एक छोटा प्रॉब्लम कराऊंगा लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोग मुझे बोलिएगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा. वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. आप लोग देख के मुझे बताइएगा. प्रॉब्लम आपके सामने है. XYZ are the partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loans on advance, and remuneration payable to partner. In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. X, who has contributed maximum capital, demands interest 10% per annum and share of profit in the capital ratio, but Y and Z do not agree. Y has devoted full time for running the business and demand a salary at the rate of rupees 500 per month. X and Z do not agree. Z demands interest on loan of rupees 50,000. Advances by him at the market rate of interest is 12% per annum. C क्या बोला है? Z demands interest on loan of rupees 50,000 advanced by him was advanced by him at a market rate of interest, comma देके, at a market rate of interest 12% per annum. How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account in the light of transferring 10% divisible profit to reserve fund? It is given that before taking into any of the above claim, profit amounted to rupees, net profit कर देते हैं, net profit amounted to rupees 4,53,000 at the end of the first year. बोलिए. Got my point? Yes, sir. बंदे का कोई एग्रीमेंट नहीं है. नंबर वन. जेड बोल रहा है मैंने कैपिटल सबसे ज्यादा दिए, मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और वो भी कैपिटल रेशियो में. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. वाई वॉज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस and demand salary at the rate of rupees 5,000 per month. वो बोल रहा है मैं सारा दिन बिजनेस में दे रहा हूं, मुझे 500 रुपया चाहिए. बट X and Z do not agree. Z demands interest on loan 50,000 was advanced. Interest on loan of rupees 50,000 was advanced by him at a market rate of interest which is 12% per annum. सेटलमेंट कैसे होगा? X, Y, Z तीनों में कोई सेटलमेंट ही नहीं है. एक A बोल रहा है और दूसरा कुछ बोल रहा है. सर पार्टनरशिप डीड अगर कुछ नहीं बोला है तो कुछ नहीं मिलेगा किसी को. सिर्फ जेट को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट इक्वल शेयर करेगा बस. प्रॉफिट तो 1:1 में ही देना पड़ेगा.
हाँ, और जेड का सर एक्ट का हिसाब से कुछ नहीं बोलता तो 6% देंगे इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा? सर डिट तो नहीं बोल रहा है ना, उनके बोलने से क्या होगा? मगर लोन सर मिलेगा क्योंकि वो 6% तो हाँ। देना पड़ेगा डीड के अकॉर्डिंग। डीड में नहीं भी लिखा हो तो देना पड़ता है। नोट, note, here there is no written agreement among the partners. Under this situation, following rules are applicable as per Indian Partnership Act 1932. A. No interest is allowed on capital. B. 6% interest is allowed on loan on advance. Profit and loss share should be equally. No remuneration is allowed to any partner for involving himself in the business activities of the firm. ओके, पार्टनरशिप डीड एक्ट क्या बोल रहा है? अगर कैपिटल में एग्रीमेंट में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, पीएल शेयर होगा इक्वली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है 6%। Therefore, X will not be allowed interest on capital. Y will not entitle a remuneration. Maximum interest allowed on loan advance is 6% per annum. Profit will be shared equally among the partner after transferring the 10% of profit to reserve. Clear or not? चलिए, PL appropriation by net profit 4,53,000. 2 interest on capital 50,000 into 6% हो गया. 2 reserve fund 45,000 क्यों? डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर देखिए, टोटल क्रेडिट साइज 2,50,000, टोटल डेबिट साइड 3,000, डिविजिबल प्रॉफिट 4,50,000। आप जानते ही है डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 4,50,000 में रिजर्व फ्यूचर में के लिए जा रहा है 45,000 और करंट डिस्ट्रीब्यूशन है 4,05,000 जो 1:1 में होगा। 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सर दाड़ा, हाँ बोलो। सर ऐसा सिचुएशन में कैपिटल रेशियो पे नहीं दे सकते सर प्रॉफिट? ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बेटा? डिड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है, डीड में तो कुछ है ही नहीं। झमेला तो उससे ही हुआ था, डीड में ही कुछ नहीं था। तो एक्ट क्या बोल रहा है? अगर डीड में बोल रहा है, डीड अगर बोल रहा है तो फॉलो द डीड, अगर डीड नहीं बोल रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो कीजिए। जो बोल रहा है अलाउ ही नहीं करेगा, सिर्फ लोन के लिए अलाउ करेगा, ये इक्वली होगा और रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर। एक छोटा प्रॉब्लम के लिए इज वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट मैंने इसको 4 बार एग्जाम में आते हुए देखा है, एंड इनवेरिएबली स्टूडेंट गलती करता है इसको। ये है तो प्रॉब्लम इतना छोटा सा, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्सेप्शन से लेके डील करता है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते हैं। एनी डाउट तो बोलिए। कितना नंबर प्रॉब्लम है? कितना नंबर प्रॉब्लम है बेटा? 7। सर सर अगर जैसे पार्टनरशिप डीड में सब कुछ दिया हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी फैलरी सब कुछ बताया हुआ, और कंपनी में लॉस होता है तब भी वो लोग को मिलेगा वो सब? देखिए, डीड के ऊपर निर्भर करता है। अगर बोलता है अगर लॉस है तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर बोलता है लॉस में भी मिलेगा तो होगा, 100% होगा।
तब तो सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, तो लोअर कैपिटल अकाउंट पे लॉस डेबिट शेयर हो जाएगा करेगा, लॉस शेयर से। ऑफ प्रॉफिट की जगह लॉस शेयर करेगा, प्रॉफिट की जगह वो लॉस शेयर करेगा ना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रॉब्लम नंबर 7। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8। सर ये 7 होगा, वो 6 होगा। 7 वो 6। X and Y were the partner in a firm sharing profit and loss in the 3:2. They admit Z मैं अभी क्लास में हूँ, तुम 1 घंटे बाद फोन करो। They admit Z for 1/6 share in the profit and guaranteed that his share of profit will not be less than rupees 25,000. The profit of the firm for the year ended 31/12/2020 was rupees 90,000. Calculate the share of profit for each partner when guaranteed is given by the firm, guaranteed is given by the Z, guaranteed is given by the A and B equally. एक न्यू एरिया है जो आप लोग पहली बार कर रहे हैं, जिसको बोल रहा है गारंटी। सो गारंटी में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जो न्यू पार्टनर आप ज्वाइन कर रहे हैं, बस जो पार्टनर है, किसी एक पार्टनर को आप गारंटी दे रहे हैं आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट स्पेसिफाइड अमाउंट से कम नहीं होगा, वो चाहे 20,000 हो और 25,000 हो। नाउ सवाल ये गारंटी दे कौन रहा है? गारंटी अगर इंडिविजुअल पार्टनर देता है तो ठीक है, पर्सनल गारंटी। अगर इंडिविजुअल पार्टनर्स देता है तो वो लोगों का गारंटी, लेकिन अगर फर्म देता है तो फर्म का गारंटी। तो चलिए गारंटी के ऊपर काम करते हैं। पहले यहां पर हम लोग दिखाएंगे वन साइडेड गारंटी। वन साइडेड गारंटी मतलब यहां पर गारंटी पार्टनर को दिया जा रहा है, पार्टनर का कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को क्रॉस गारंटी, जहां पर पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे रहा है। ठीक है, चलिए अभी वन साइडेड गारंटी, यूनिडायरेक्शनल गारंटी करेंगे, बाद में बाई डायरेक्शनल गारंटी के ऊपर काम करेंगे। तो गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। आप लोग कॉमन सेंस अप्रोच से देखिए, प्रॉफिट कितना है 60,000, उसका 1/6 शेयर कितना होता है भाई 15,000, और उस आपने गारंटी कितना दिया है 25,000। तो बिलो 25,000 नहीं होना चाहिए। बिलो 25,000 होता भी है तो किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, पहले न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं, जरूरी है, नहीं करने से भी चलेगा। सॉल्यूशन, गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर Z 1/6, फॉर X एंड Y कितना होगा? Z का अगर 1/6 है तो फॉर Y, X एंड Y का कितना होगा? 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। मुझे बताइए X का शेयर कितना होगा? वो X एंड Y के भीतर शेयर रेशियो था 3:2, तो फॉर X के लिए होगा 5/6 इंटू 3/5, और Y के होगा 5/6 इंटू 2/5, 15/3 15/30 10/30। नाउ Z का मिल गया, X का मिल गया, Y का मिल गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ 15:30, 10/30 is to 1/6 Z का, तो रेशियो क्या हो रहा है 15:10:6। कैसे 5 हो रहा है सर? ऊपर नीचे इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली 5/30 हो गया, तो 15:10:5, 3:2:1, दैट इज अ PSR। नाउ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 90,000 का 1/6 कितना? 15,000। आई रिपीट, 90,000 का 1/6 15,000। और गारंटीड टू जेड कितना दिया है? 25,000। तो नेचुरली अगर गारंटी दिया है तो रिवाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। और बैलेंस प्रॉफिट क्या होगा? 90,000 माइनस 25,000। तो फर्म का प्रॉफिट, अगर फर्म गारंटी दिया है तो फर्म का प्रॉफिट से 25,000 पहले जिसको गारंटी दिया है उसको दे देंगे। उसके बाद एक्स एंड वाई को एज पर पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 90 से 25 जेड को दे दिया, बचा रहता है 65,000। तो 65,000 को कौन सा रेशियो में? 3:2। देखिए 39,000 26,000। नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट 39 26 25। प्रोसेस कराने का तरीका जैसे मैंने कराया है वैसे ही आप करेंगे। क्या? XYZ लिखेंगे, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, गारंटेड का अमाउंट लिखेंगे, देखेंगे whichever is higher। क्यों हायर? भाई आपने तो गारंटी दिया है तो मिनिमम मिलेगा। उसका जो शेयर है और कंपनी उसको जो गारंटी दे रहा है, जिसमें में जो हायर है उसको उतना ही मिलेगा। तो रिवाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट जेड। बैलेंस प्रॉफिट किसको दे देंगे? X1Y, बिकॉज ने गारंटी लिया था। नाउ पीएल अप्रोप्रिएशन 90,000 टू शेयर ऑफ प्रॉफिट XYZ 39 26 25 90। क्लियर और नॉट? यहां पर क्या था? गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। डन। अब आ जाते हैं गारंटी गिवन बाय X। $90,000 को 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे नॉर्मली रेशियो होता है। डेफिसिट टू जे कितना है? डेफिसिट टू जेड का गारंटी कितना दिया था? जेड को गारंटी आपने कितना दिया था? 25,000। चलिए, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 90,000 को दे दीजिए 3:2:1 45 30 15। गारंटी टू जेड आपने क्या दिया था? 25,000। डेफिसिट कितना आ रहा है? 25,000 माइनस 15,000 10,000 इज योर डेफिसिट। आपने गारंटी दिया था 25,000। आप मतलब एक्स ने गारंटी दिया था, गारंटीड गिवन बाय एक्स। आपने एक्स ने गारंटी दिया था कितना? एक्स ने गारंटी दिया था 25,000 जेड को। उसका शेयर हो रहा है 15,000, तो डेफिसिट आ रहा है कितना? 10,000। तो ये 10,000 को कौन बियर करेगा बेटा? एक्स ने गारंटी किया तो एक्स को ही बियर करना पड़ेगा, मतलब एक्स का पीएल से ही माइनस होगा शेयर से। तो डेफिसिट बोर्न बाय एक्स, एक्स से माइनस कर दिया। ओके, जैसे ही माइनस कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर 10,000 दे दिया। तो नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? इसको अगर मैं ए मानता हूं और इसको मैं बी मानता हूं तो नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? ए प्लस बी। देखिए तो 15,000 था, डेफिसिट मैंने आइडेंटिफाई किया, ये दो लाइन मैंने डेफिसिट करने के लिए किया है। तो 15,000 के साथ 10,000 मेरा क्या हो गया?
25 हो गया, y का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 30, z का हो गया कितना 45 माइनस 10 दैट इज 35। देखो टुल मिला के 90 है। क्लियर और नॉट? सर जेड का कॉलम में 10,000 कहाँ से आया? नीचे टू वी बॉन्ड 15,000 होल्ड, 15,000 उसका नॉर्मली मिलता है, लेकिन गारंटी दिया है 25। डेफिसिट कितना आ रहा है 25 माइनस 15, 10,000। तो समझ में आया डेफिसिट टू जेड। सर वो 10,000 तो एक्स का कॉलम से माइनस, मतलब एक्स का ना ना पेयर ना से ना, माइनस। डेफिसिट किसका है? जेड का डेफिसिट है, लेकिन अगर जेड अच्छा। को डेफिसिट हो रहा है 10,000, वो कहां से एडजस्ट होगा बेटा? एक्स से एडजस्ट होगा, तो एक्स से मैंने एडजस्ट किया है, तो 10,000 एक्स से माइनस कर दिया, 10,000 विल डिडक्टेड फ्रॉम एक्स, तो एक्स से माइनस किया, जेड में ऐड किया, ओके सर। तो ऑटोमेटिकली रिवीजन क्या हो गया 35 30 25। क्लियर? आपको अल्टरनेटिव देखना ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सेम थिंग। अब guaranteed given by x and y equally, मतलब पहला केस में गारंटी दिया था फर्म, दूसरा केस में गारंटी दिया था इंडिविजुअल पार्टनर, नाउ थर्ड केस guaranteed given by x and y and z, x and y equally। देखते हैं क्या होगा। चलिए ये आपके सामने मैं करूंगा। क्या लिखेंगे? गारंटेड गारंटी टू जेड कितना दिया था? जेड को गारंटी 25,000 बेटा, तो 25,000 और डेफिसिट कितना आया 25 माइनस 15 10,000। यस और नो? एग्री? जेड को Yes, आपने sir. गारंटी दिया था 25,000, आपको जेड को मिल रहा है 15,000, तो डेफिसिट कितना हुआ जेड को 10,000। 10,000. 25 माइनस 15 10,000। शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, मुझे बोलिए तो क्या होगा? बिटवीन, पहले तो एक्स लिया था, देखिए डेफिसिट बोन ऑफ डेफिसिट कौन बियर करेगा? शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी बिटवीन एक्स X and एंड Y. वाई, दोनों ही बियर करेगा। इन कौन सा रेशियो? Profit sharing. जो रेशियो पे 1:1। तो कैलकुलेशन क्या होगा? 10,000 deficiency in 1:1, तो 5,000 यहां से भी माइनस होगा, 5,000 यहां से भी माइनस होगा, और यहां पर कितना जाएगा 10,000। मतलब x से 5,000 y से 5,000 काटेंगे, z को 10,000 दे देंगे, दैट इज नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट 40 25 25। Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. जो टेक्निक मैंने सिखाया है आपको ना किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं पर आपको मिलेगा, ये मेरा ही पर्सनल निकाला हुआ चीज है। देखिएगा गारंटी का प्रॉब्लम आपको कितना स्मूथली आपको हो जाएगा।
सिर्फ मैंने जो शेड्यूल किया है उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। देखिएगा कैलकुलेशन इतना आसानी से हो जाएगा। पहला केस में फॉर्म ने गारंटी दिया है, दूसरे का केस में इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दिया है, और तीसरे का केस में क्या होगा, दो सर। पार्टनर बाकी पार्टनर को गारंटी दे रहा है। बोलो। ये आप नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखे, वो 20,000 ना होगा कहाँ पे क्या? सर? ये वाला डेफिसिट है 10,000 और शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी 10,000, 20,000 तो। अच्छी तरह से देखो। पंकज क्या बोल रहा है, फिर से बोल पंकज। बोल रहे हैं सर, आप एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट डेफिसिट निकाले 25,000 माइनस 15,000, 10,000 वेरी गुड। डेफिसिट आया, और फिर 10,000 शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, 10 20,000 तो हुआ था ना ना, क्यों? 25,000 उसको मिलना चाहिए था, उसका गारंटी है। नॉर्मल प्रोसेस को 15,000 मिल रहा है, तो उसका डेफिसिट कितना हुआ? 10,000। अच्छा, ये 10,000 डेफिसिट किसको देना पड़ेगा? जेड को, एक्स जेड वाई को देना पड़ेगा। को देगा कौन? एक्स वाई। कौन सा रेशियो में? 1:1। कितना अमाउंट होगा? 10,000। क्यों 10,000 किसका? जेड के लिए तो 10,000 डेफिशिएंसी है, लेकिन ये डेफिशिएंसी को कौन कौन शेयर कर रहा है? एक्स एंड वाई। हाँ तो कितने में शेयर करेगा? 5,000 5,000। यस सर। मेरा बीमारी के लिए आप लोग पैसा उठा रहे हैं, 10,000 लगेगा। पंकज और राहुल, ये दोनों ने डिसाइड किया हम लोग इक्वली सर का जो खर्चा हो रहा है 10,000 हम लोग दे देंगे। तो पंकज कितना देगा? 10,000। पंकज कितना देगा? सर का 10,000। खर्चा हो रहा है, डेफिसिट पड़ रहा है 10,000। पंकज और राहुल इक्वली देगा बोला है, तो पंकज कितना देगा? 5,000। 10,000। पंकज 10,000 देगा। 5,000 देंगे। 5,000 देगा। और राहुल 5,000। क्यों? सर डेफिशिएंसी तो इक्वली बियर करेंगे। समझ में आया? यस सर। हम्म। ये वाला नहीं समझ में आया अभी भी। 25,000। हाँ, अरे वो A प्लस बी है भाई। 15,000 प्लस 10,000 अरे करके ये 25,000 15,000 है, प्लस ये डेफिशिएंसी था 10,000, उसको तो टोटल 25,000 पहले ही डिसाइड था मिलेगा। यहां पर आया कैसे? ये 15,000 प्लस ये 10,000। देखो ए प्लस बी, कॉमन सेंस लगाना। 15,000 फर्म से मिल रहा है और 10,000 पार्टनर से मिल रहा है, तो कुल मिला के तो 25 ही हो गया। उसका तो गारंटेड है 25,000 मिलेगा। ठीक है? डन? Yes, sir. यस सर। पंकज ठीक है और नॉट? सर तो ये था गारंटी का प्रॉब्लम। अब मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ करूंगा, सेम टाइप का। प्रॉब्लम 8। X and Y are the partners in the firm 3:2. X, Y and Z where the partner in a firm having profit sharing ratio 3:2:1. They guaranteed that share of profit of Z will not be less than 30,000. The profit for the year 1 lakh.
interest to be charged, that guaranteed that his total share of profit, okay, interest to be charged, to be allowed at the rate of 10%. And salary to partner rupees 200, rupees 500, rupees 600, and rupees 700 respectively. Calculate the prepare profit and loss appropriation account. Assuming done. Solution. थोड़ा पीएल अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा इसलिए. टू शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया था. कैपिटल रुपीज 40,000 for A, 30,000 for B, and rupees 20,000 for C. तो चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन में 2 सैलरी टू पार्टनर क्या होगा? A X Y Z. कितना सैलरी? 500 into 12 month. उसके बाद 600 into 12 months. उसके बाद 700 into 12 month. बोलो बेटा कितना? 6,000, 6,000, 7,200, 8,400. कितना हो रहा है? बोलो. 20,600. हाँ, 20,600. 20,600. 21,000. ठीक सर, 21,000.
2. Interest on capital. 2 interest on capital account. कितना? $40,000. কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট होगा? 10%. 30,000. 30,000. क्या होगा? 4,000. सर जेड का 20,000 है। 3,000. 2,000. कुल मिला के 9,000. 9,000। सॉरी 9,000। नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहला गारंटीड केस बाय द फर्म। चलिए, गारंटेड बाय द फर्म, धीरे धीरे देखेंगे। गारंटेड बाय द फर्म, टोटल डेबिट क्रेडिट साइड कितना? 1 लाख। टोटल डेबिट साइड बोलो कितना? 21,600 प्लस 9,000। 21,600 30,600 प्लस 9,000 कितना? 30,600। 30,600 डिविजिबल प्रॉफिट कितना? 69,400। एक दूसरा तरीका तुम लोगों को दिखाता हूं, जो तरीके से सब हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कितना? जरूरत नहीं है लाइन का। डिविजिबल प्रॉफिट एंड इट्स शेयर इन कौन सा रेशियो? 3:2:1। तो ये रेशियो में बांट दो।
घटिया फिगर आएगा। डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 34,700। दूसरा 23,133। लास्ट 11,567. ओके। पहले जो सिस्टम कराया उस सिस्टम से थोड़ा अलग है। ये सिस्टम से सबका एक ही फॉर्मेट में काम हो जाएगा, कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। गारंटेड टू जेड, गारंटेड टू जेड कितना? 30,000। add interest on capital। z का इंटरेस्ट कितना है? 2z। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो? 2000। 20,000 के ऊपर add salary to z, $8,400। $8,400 total share to z कितना बोलो? 11,567 plus 2,000 plus 8,400, 21,967। गारंटी गारंटी गिवन टू जेड कितना? गारंटी गिवन टू जेड देखो तो कितना गारंटी दिया था? 30,000 का मिला है? यस सर। Yes. तो चलो बहुत सावधानी से देखो। 30,000। तो ये मुझे बताओ डेफिसिट कितना था? डेफिसिट टू जेड कितना था? 8,033। सॉरी 8,033। डन। 8,033। शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी बोला है। सर कौन शेयर ऑफ गारंटी तो फॉर्म दिया है सर। बाई फॉर्म। फॉर्म अगर डेफिशिएंसी करता है तो इसका मतलब ये होता है फॉर्म का जो बाकी पार्टनर रहता है वही अल्टीमेटली बियर करेगा, लेकिन कौन सा रेशियो में? एज पर देयर पीएसआर। तो कितना पीएसआर है? बाय द फॉर्म। तो बाय द फॉर्म मतलब फॉर्म के भीतर 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। जेड का अगर मैं सपोर्ट दे रहा हूं तो कौन किसको देना पड़ेगा? एक्स एंड जेड को। कौन सा रेशियो में? नॉर्मली जो फॉर्म का रेशियो है, फॉर्म का लोगों का रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म डेफिशिएंसी दैट इज 8,033 between x and y in 3:2। in 3:2 बोलो।
बोलो क्या होगा? 4,800, सर यहाँ 199. पर तो 8033 आ ही रहा है। उसके बाद ये ये 4,000 डेफिसिट को पंकज 8033 जो मैंने डेफिसिट कैलकुलेट किया है, डेफिसिट कैसे आया एक बार दिखा दो। 30,000 से माइनस कर दिया 21,967। ये डेफिसिट को मैंने शेयर किया बिटवीन एक्स एंड वाई इन द 3:2। बोलो अमाउंट क्या होगा? Sir, 4819. সরি 4819. তুমি দরজাটা লাগাও না, কি করছো? ওই ঘরে যাও, দাওয়া আছে। আমি তো উপরে নিয়ে যাব। এখানে বসে করো। উপরে কি করব? মাই তো বললো। এখানে করো। ওরা আসে না উপর থেকে। ফিগারটা একবার বল তো, আমার মেয়ে আমায় গুলিয়ে দিয়েছে, বল। 4819. 4819 3213. 3213। तो डेफिशिएंसी वो लोगों को बियर करना पड़ेगा, मतलब वो लोगों से जाएगा। डन। ए और ये शेयर ऑफ डेफिशिएंसी हुआ बी। तो नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट 34,700 माइनस 34,700 माइनस 4,819। 29,881. सॉरी 29,881. 881. वाई का 19,920. जेड का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था 11,567। 30,000 एडिशनल प्रॉफिट आएगा उसका 8033। कितना? 11,567 प्लस 8033 19,609. 19,600। अल्टीमेटली देखो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मैच कर गया, 30,000 ही हो गया। कैसे? 19,000 के प्लस 2,000 ऐड करो प्लस 8,400 करो। अल्टीमेटली ये उसका गारंटेड था 30,000। क्या जेड का सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, उसका क्या गारंटी था? टोटल शेयर सब कुछ मिला के पुरोटा टोटल शेयर। नाउ पीएल अप्रोप्रिएशन में आइए। एक्स का कितना लिखेंगे? एक्स का शेयर है 29,881। जेड का शेयर कितना है? एक्स का शेयर, वाई का शेयर है 19,920 और जेड का कितना है 8033। सॉरी 19,600। हाँ गलती किया है एकदम। 19,600 करने के टाइम तुम लोगों का फिगर एक इधर उधर होता है तो तुम लोगों का हो जाता है। सर ये तो ये जो ऐड करके 4,820 8033 आ होगा। रहा है, ये सर नो? नहीं सर 19 नहीं होगा, 20 होगा। यस सर। और 80। एग्जाम में पूरा पागल की तरह घूमते जाओगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट देखो कितना हो गया 29,880 प्लस 19,900 69,400 प्लस 19,600 कितना 69,000। 69,400। अब मजे के बाद देखो
69,400। 400. देखो तो टोटल 1 लाख टैली कर रहा है, 100% टैली करेगा, बिकॉज यहां पर फिगर देखिए 69,400 ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। यस सर 1 लाख आया। देखो सेम ही आएगा, क्लियर। लेकिन ये दोनों यहां पर ऐड क्यों किया, बिकॉज उसका गारंटी में सिर्फ ये दोनों, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं था, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मिला के, इसलिए सब कुछ मिला के 21,967, 30,000 हो रहा है, तो डेफिसिट हो रहा है 8033। तो 8033 का प्रॉफिट उसको फिर से देना पड़ेगा। कौन देगा? फर्म देगा। फर्म मतलब बचा कौन रहता है फर्म में? एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई देगा। डन। सर इसमें और इससे पहले वाले में क्या डिफरेंस था सर? कुछ नहीं था, वो उस प्रोसेस में भी कर सकते थे। वहां पर मैंने जेड को पहले ही दे दिया, बाकी जो बैलेंस बचता है मैंने इस फॉर्मेट में शेयर किया। ये सिस्टम से करने का क्या फायदा, हर प्रॉब्लम सेम सिस्टम में हो जाएगा। सर इसमें तब आप ये सैलरी और इंटरेस्ट क्यों ऐड किए? बिकॉज क्या बोला है, दैट दे गारंटेड दैट हिज टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला है? टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल शेयर ऑफ में तो सब कुछ ही आएगा, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट में सब कुछ मिला के वो 30,000 होना चाहिए, और हो क्या रहा है 21,967। तो बाकी क्या आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी पैसा आएगा। कौन देगा? फर्म देगा। 8033। चलिए सेम तरीके से आप गारंटेड एक्स करते हैं, एक्स करने के टाइम ही आप लोग समझ जाएंगे। गारंटेड गिवन बाय एक्स, आ जाइए। टोटल क्रेडिट साइड 1 लाख, डेबिट साइड 30, एवरीथिंग सेम 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 सेम। टोटल शेयर इतना, गारंटी दिया है 30, डेफिसिट 8033, डेफिसिट टू जेड। कौन बियर करेगा बोलो तो? एक्स बेयर करेगा। वेरी गुड। 8033 समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। हाँ देखो एक फॉर्मेट में हो गया 34,700। ये कैलकुलेशन का एक इजी फॉर्मेट है। कितना आ रहा है? 26,667. 667। ये तो 23,133 रहेगा, और ये तो सेम ही रहेगा। चलिए आ जाइए, यहां पर लिखेंगे 26,667, और y में कितना लिखेंगे? 23,113। 113 ना, 133. हाँ। देखिए टोटल करके 69,400, सेम चीज, बिकॉज गारंटीड गिवन बाय एक्स। तो डेफिसिट कैलकुलेट करने के बाद जहां से डेफिसिट जो बीआर रेडी है बीआर करने के लिए, उससे माइनस कर दो। सेम तरीका। इक्वली बोलो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ, एक चीज गलती हो गया, बाई एक्स। हाँ बोलिए। तो शेयरिंग और डेफिशिएंसी बाई फार्म होगा ना, फाई X and Y. एक्स एंड वाई, कौन सा रेशियो? इन 1:1। $8033 को बोलो
4017, 4016, क्या आएगा? 34,700 माइनस 4017, 30,683। ये 23,133 से उसने जो बियर किया है 4016, 19,117। शार्पनर शार्पनर कितना? बैठ जाओ ओखाने की करो। तो फिगर आ गया 19,117 एंड 30,683, 30,683। देखिए तो सेमी आ रहा है तो 69,400। यस सर। एनी डाउट तो बोलिए। सेम प्रोसेस से मैंने आप लोगों को किया, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक चीज रिपीट कर दे रहा हूं, ये इसका एक ऑल्टरनेटिव दे देता हूं सो दैट आपको दिमाग में रहेगा नहीं सर सेम ऑल्टरनेटिव से हम लोग कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव हम लोग ऑल्टरनेटिव से ही करेंगे ठीक है। 10,000 बाई बोन बाई एक्स एंड वाई इन कौन सा रेशियो? 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3:2 होगा तो 6,000 4,000 6,000 4,000 करने के बाद देखो सेमी आंसर आया है 39,000 and 30 minus 4 26,000। सो दैट आपको लगेगा सेम चीज ही तो सर है, नहीं तो आपको लगेगा सर पहले प्रॉब्लम में तो ये नहीं कराया था। तो मैंने दो तरीका आपको दिखा दिया, सेम ही मतलब आएगा। और ये तरीका क्या है? यूनिफॉर्म है, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस ये स्टेटमेंट आप इंडिविजुअल पार्टनर, ग्रुप पार्टनर, फर्म तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और जब देख लीजिए, एनी डाउट? तो इसके साथ हम लोगों का गारंटी यूनिडायरेक्शनल खत्म होता है। नेक्स्ट दिन का क्लास में मतलब मंडे क्लास में हम लोग क्रॉस गारंटी करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिन का क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गारंटी। डन सर? सर मान लीजिए हम किसी को गारंटी देते हैं 30,000 मतलब 30,000 का और फर्म में हो जाता है लॉस, तो उसको प्रॉफिट कौन देगा? वाह वाह क्या क्वेश्चन है। अगर गारंटी देते हो तो भाई तुमको देना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? अगर एक्स लिया है इसको ही देना पड़ेगा। सर इससे तो इसका और भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव होगा। तुम जैसे ही एनीवन टेक द प्रॉब्लम, मान लीजिए ये पॉजिटिव के जगह जो उसने बोल रहा है ये फिगर नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है होने के बाद ये सब फिगर नेगेटिव आएगा। अल्टीमेटली डेफिसिट मेफिसिट एडजस्ट करने के बाद सर ये नेगेटिव फिर से नेगेटिव। यस, मतलब एक्स एंड वाई को और भी लॉस ज्यादा बियर करना पड़ेगा टू कंपेंसेट द जेड। आपको ने तो जेड को एंट्री दिया था विद अ प्रॉफिट गारंटी, वो थोड़ी लॉस बियर करेगा। और ये गारंटी कौन दिया था? आइदर फर्म, आइदर पार्टनर और ग्रुप ऑफ पार्टनर। तीन लोग देते हैं गारंटी, इंडिविजुअल पार्टनर, ग्रुप ऑफ पार्टनर एंड फर्म। फर्म देना का मतलब है बाकी सब पार्टनर एज पर पीएसआर गारंटी दे रहा है।
ग्रुप पार्टनर मतलब ग्रुप पार्टनर एज पर पीएसआर भी दे सकता है और अपना मर्जी से भी रेशियो क्रिएट कर सकता है। इंडिविजुअल पार्टनर मतलब वो पूरा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है। तो लॉस हो प्रॉफिट हो, अगर डेफिसिट है तो उसको ही बियर करना पड़ेगा। गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में आराम से आ सकता है, उसमें लॉस दिखा दिया तो उसको लॉस को सफर कर डेफिसिट प्रॉफिट में दिखाने के लिए जेड को तो प्रॉफिट ही होगा अल्टीमेटली। लॉस होता भी है तो उसको गारंटी, मान लीजिए 10,000 रुपया जेड का लॉस आ रहा है, लेकिन उसका गारंटी है 30,000। कौन बियर कर रहा है? एक्स बियर कर रहा है। तो चलिए उसको 10,000 प्लस 30,000 मतलब 40,000 डेफिसिट उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये 40,000 कहां से माइनस होगा? एक्स से माइनस होगा। मतलब एक्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है, उस लॉस से पूरा ही आप 40,000 माइनस कर देंगे। मतलब एक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक्स क्रिएट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन अब्दुल, वेरी गुड। Any other question? Any other query? सर पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड करता है सर? यस, तुमने ये सवाल किया था मुझे। पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा होल्ड करो, पहले अटेंडेंस दे देता हूं।